Good morning, students. I, Yash Santwani from Shivjyoti Educational Group, I welcome you all to this video session. So, class, today we are going to study our chapter number 3 of 11th Accountancy, and the name of the chapter is Recording of Special Transaction 1. Why I have mentioned 1 over here? Because as per the NCERTs, we are having 2 chapters, that is chapter number 3 and chapter number 4, whereas chapter number 3 is recording of special transaction 1, and the chapter number 2 is recording of transaction number 2. Okay, and if I told you that when we are going through NCERT, then this particular chapter includes 3 different topics, and on those different topics we are having 3 different chapters in our DK Goel. Say in chapter number 3 of NCERT we are having accounting equation, we are having journal entries, and we are having special subsidiary books. Alright, but when we go through these chapter with the help of DK Goel, then you will find that there are specific chapters, different chapters for these particular topics as well. Matlab there is a different chapter for accounting equation, there is a different for journal entry, and there is a different for special subsidiary books. That is the reason that we have mentioned part 1 over here, because we are going to discuss this particular chapter in 3 different video sessions. So this is the very first part, that is journal entries. So today we are going to cover the topic that is journal entries. Class, first of all let me tell you कि पूरी अकाउंटेंसी, आप किसी भी लेवल के अकाउंटेंसी की बात करेंगे अगर, तो किसी भी लेवल पे अकाउंट्स अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. और मेरे मायने में ये है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर जर्नल एंट्रीज, इफ़ यू आर परफेक्ट इन योर जर्नल एंट्रीज, देन यू विल गोइंग टू रॉक योर अकाउंट्स. मतलब आप, और क्लास अगर मैं बात करता हूँ आपके अकाउंटेंसी की, तो आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग होने से आपको अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता. नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी एट ईच एंड एवरी लेवल. आप किसी भी लेवल पे चल रहे हैं, वेदर इट इज़ योर स्कूल लेवल और वेदर इट इज़ योर कॉलेज लेवल और सम प्रोफेशनल एग्जाम्स, everywhere you have to deal with journal entries topic. So today we are going to discussing it. Alright, so let's move further, class. First of all, we need to understand the basic terms that is going to be used in our accountancy, because without these basic terms it is not possible to get rid of the problems. Okay, so let's move further. The very first basic term we are having with us is assets. I have already told you in the previous sessions that what is the meaning of assets. All those things on which we are having our right. Okay, examples are there: cash, bank, debtors, prepaid expenses, buildings, machines, furniture, investments, etc. हर वो चीज़ जिसका बिजनेस के ऊपर राइट है, अधिकार है, उन सभी चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे? असेट्स बोलेंगे. ओके, देन इट कम्स टू लाइबिलिटीज़. हर वो अमाउंट जो बिजनेस पे करने के लिए लाइबल है उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज़. ईच एंड एवरीथिंग और अमाउंट फॉर विच बिजनेस इज लाइबल टू मेक अ पेमेंट इज नोन एज liabilities. The examples are creditors, short-term borrowings, bank loans, outstanding expenses, capital, and etc. Then we come to expenses. All the regular expenses that are of revenue nature. ठीक है, जो भी हम लोगों को पेमेंट करना होता है, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वॉट एवर इट इज. Then it comes to incomes. Incomes are all those transactions which create earning for the बिजनेस एंटरप्राइज. बिजनेस की जो भी कमाई होती है उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे. ऑलराइट क्लास, जैसे कि सेल्स, गुड्स को जब हम बेचेंगे तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम. देन इट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, एक्सेट्रास. एंड क्लास, लेट मी टेल यू दैट फॉर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, दैट फॉर डीलिंग विद अकाउंट्स हमें इन चारों टर्म्स को यूज़ करना है. सो द व्हाट बेसिक स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो इज, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड योर ट्रांजेक्शन. ओके, अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में ट्रांजेक्शन्स देखेंगे. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड योर ट्रांजेक्शन्स, you just have to analyze that out of these 4 things, that is assets, liabilities, expenses and income, what things are involved in that particular transaction, whether it is a transaction of assets
only, or whether it is a transaction of liabilities, whether it is a transaction of expenses or incomes, or it can be the transaction of liabilities, expenses, income, or it can be the transactions of the of involving the multiple things. That is, it can involve assets and liabilities, it can involve liabilities and income, it can involve assets and expenses, it can be a combination of any of these four. So we just have to analyze that what particular things are involved in that transaction. This will be the very first step, and after that we have to analyze that what is the nature of these transactions. अभी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेचर एज वेल. तो हम लेट्स मूव फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, you can see it here. First, then we have to analyze its nature, and in a third step we have to analyze that whether that particular thing which is involved is increasing or decreasing. Say the nature of assets are debit in nature. So if there is a increase in the assets, then we'll going to debit. ठीक है, हम लोगों को उस assets को डेबिट करना होगा जर्नल एंट्री में, और अगर कोई डिक्रीज होता है तो हम लोगों को उसको क्रेडिट करना होगा. तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए रूल्स बना दिए हैं. रूल्स आई हैव मेंशन दैट फॉर द एसेट्स डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स. अगर कोई एसेट बढ़ती है तो डेबिट, अगर कम होती तो क्रेडिट. देन फॉर लाइबिलिटीज इट द नेचर इज क्रेडिट, देयरफॉर for increase in liabilities we have to credit, and for decrease in liabilities we have to debit. Then for expenses the nature is debit, therefore whenever there is an increase in our expenses, or whenever we are going to create any kind of expenses, then such expenses will going to be debit in our journal entries. And when we are going to decrease our expenses or we are writing off, मतलब जब हम लोग उसको P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं, वो आगे के टॉपिक्स हैं, then we have to credit it. And if we talk about income, then the nature is credit. So for increase in income it will be credited, and for decrease in income it will be debited. Alright class, so as you can see, देखो बेसिकली दो ही नेचर है हमारे पास में, एक डेबिट और एक क्रेडिट. एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट है, और लाइबिलिटीज और इनकम का नेचर क्रेडिट है हमारे पास में. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. Alright, now the basic terms which is very much useful for starting your journal entries or for starting your business. The basic term we are having is capital. Class, this is for understanding this term, first of all you need to understand business entity concept. We have already discussed in our chapter number 2 video lecture what is the meaning of business entity concept. तो business entity concept कहता है कि business is a separate entity and its businessman, its owner is a different separate entity. मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग. तो क्लास, जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ कैपिटल इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. मतलब जो पैसा बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट है, वही पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है, कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बन जाता है. वाई इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी क्लास? जस्ट बिकॉज whenever our business get closed, so it is the responsibility of that business कि we have to return the amount to our owner which he has invested while starting the business. जब भी बिजनेस बंद होगा तो हमें उस अमाउंट को रिटर्न करना पड़ेगा, इस वजह से उसको हम लोग लाइबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं. ऑलराइट, द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज गुड्स. ईच एंड एवरीथिंग ऑफ विच यू आर डूइंग बिजनेस, या फिर आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यू आर यूजिंग, all those things will be considered as goods. Okay, so next is you are having for an example, goods का एक example ले लेते हैं. For an example, you are having a factory of manufacturing biscuits, eatable biscuits. Okay, now each and everything that is being used for manufacture that business for that biscuits will be considered as goods. For an example, the wheat flour, the sugar, the other things. So all those things will be considered as your goods. Okay, let's move to further. Now we are having is purchases. Class, whenever a business is making transaction of purchasing goods, अगर हम लोग goods खरीदते हैं, then it will be treated as we are making an expense in the name of purchase.
hence that purchase account will be debited in our journal entry. Okay, then we are having the creditors. Class, if we are purchasing goods on credit basis, then the person from whom we have purchased those goods will be considered as a liability in the name of creditor. Okay, जिस भी person से आपने उधार में goods खरीदे हैं, that particular person will be considered as your creditor. Okay, and it will be considered as your liability. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक responsibility आ जाती है उस amount को pay करने की. Okay, so let's move further now. Here are some entries for the same. फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, कैश हमारे बिजनेस के पास में आ रहा है तो कैश नाम की एसेट बढ़ती है, साथ में कैपिटल नाम की लाइबिलिटी भी बढ़ती है. सो एज आई टोल्ड यू दैट डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, देयरफॉर कैश अकाउंट इज डेबिटेड, and as I told you that credit all increase in liabilities, therefore capital account has been credited in this journal entry. So the final journal entry will be cash account debit to capital account. Next is entry for purchasing goods on cash basis. Here it is purchase account debit to cash account, just because the purchase expense is been increased, therefore it is debited, and the cash asset is decreasing because हम लोग उसको रिटर्न में कैश पेमेंट करेंगे तो वो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया. And when we are going to purchase goods on credit basis, then the entry will be purchase account debit to creditor. I have mentioned creditor over here. If any name of the party is provided to you in the transaction, then that particular name should got credited. Okay, for an example, X Limited purchased goods of rupees 10,000 from A, then the entry will be purchase account debit to A account by rupees 10,000. All right, so let's move further. All right, now we are having the basic term as sales. तो क्लास, जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हमें परचेज नाम का एक्सपेंस होता है, लेकिन जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हमें सेल्स नाम की इनकम होती है. ओके, ये एक अजम्पशन है हमारे पास में. एंड देन इट कम्स टू डेटर्स. क्लास, जब हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं तो हमारे पास में क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी अराइज होती है. और जब हम हमारे फिनिश गुड्स, व्हेन वी आर गोइंग टू सेल आर फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू अ पर्सन, then that particular person will be considered as your debtors. और debtors हमारे लिए क्या हो जाती है? asset. क्यों? because a right has been arise on that person to receive payment from him. This is why debtors are considered as your asset, and that will be a current asset. So and then we are having the journal entry for purchasing an asset. Whenever we are going to purchase anything other than goods, अभी तक तो हमने गुड्स के ऊपर बात करी थी जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है. बट व्हेन वी आर डीलिंग एनी फॉर एनी अदर थिंग अदर देन गुड्स, ओके, तो हम लोग क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं एक बार. सो लेट्स मूव फर्दर. एंट्री फॉर सेलिंग गुड्स विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. दिस एंट्री इज फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस. कैश asset is increased and sales income is increased, therefore cash account is debited and sales account is credited. Then we are having is entry for selling of goods on credit basis. जब हम उधार में बेच रहे हैं तो हमारे पास में कैश तो आया नहीं, बट कैश नाम के एसेट की जगह पे हमारे पास में डेटर्स नाम की एसेट आ गई, ठीक है. पार्टी नेम आई हैव मेंशन्ड. इफ देयर इज अ नेम ऑफ एनी ऑफ द पार्टी देन यू हैव टू डेबिट दैट पर्टिकुलर नेम. ओके, सो डेटर्स नाम की एसेट बढ़ गई, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स नाम की इनकम तो हो ही रही है. एंड देन वी आर हैविंग एंट्री फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट. तो क्लास, यहाँ पे ध्यान देना, आप जब भी आप गुड्स परचेज करोगे या आप गुड्स बेचोगे तो हम लोग परचेज और सेल्स टर्म को यूज़ करेंगे, प्रॉपर गुड्स टर्म को यूज़ नहीं कर रहे थे. ओके, बट इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ द अदर थिंग्स अदर देन योर गुड्स, तो हम लोग असेट वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डीलिंग फॉर मशीनरी, इफ़ यू आर डीलिंग फॉर बिल्डिंग, तो हम लोग मशीनरी या बिल्डिंग टर्म ही यूज़ करेंगे, हम लोग उसमें कोई परचेज या सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. ओके, so if you are purchasing any kind of asset on cash basis, then the entry will be asset account debit to cash, and if you are purchasing it on any of the credit basis, then the entry will be asset account debit to creditor. Okay, and अगर हम लोग हाफ पेमेंट कैश में कर रहे हैं और हाफ क्रेडिट में, तो here it will be the entry that is asset account debit to cash account and to creditor account. This is a combined entry system जहाँ पर हम सारी डेबिट होने वाली चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं और क्रेडिट होने वाली चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं, विच रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन.
Okay, so let's move further now. Okay, now we are having the topic of discount. Whenever you are going to purchase or sell your goods on discount basis, then what will be the treatment for that? So for before moving further, you have to notice over here that you are having two different types of discount with you, that is trade discount and cash discount. Okay, so trade discount basically means, class, whenever you are providing discount or whenever you are taking discount at the time of trading, that means at the time of purchasing or selling of goods. What do you mean by trading? Trading means purchasing or selling of goods. तो जब हम लोग पर्टिकुलरली परचेज या सेल करते समय, गुड्स को परचेज या सेल करते समय कोई डिस्काउंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे हमारा ट्रेड डिस्काउंट. एंड क्लास, you have to remember one thing, that there will be no entry have to be required for recording your trade discount, but you have to show that particular impact on your amount, on the amount side. For an example, you have purchased goods of rupees 1 lakh, and over there you are getting the discount of 20%, you are getting the trade discount of 20%. Okay, so what will be the final price for you? The final price for you will be your 80,000, that is 1 lakh minus 20% of 1 lakh, that is 20,000. Therefore the final price is 80,000. So what you will going to do is, you will just pass a normal entry, that is purchase account debit to cash. Okay, and the amount will be your rupees 80,000 in place of rupees 1 lakh. यानी कि हमें ट्रेड डिस्काउंट का जो इफेक्ट होता है वो अमाउंट में तो दिखाना होता है, लेकिन उसकी कोई जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करते हैं. जर्नल एंट्री हम लोग बेसिक ट्रांजैक्शन की ही करते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, आप लोग देख सकते हैं. ओके, दिस एग्जांपल इज फॉर सेल्स, एंड इन द नरेशन पार्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ द परचेज. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द कैश डिस्काउंट. क्लास, कैश डिस्काउंट मीन्स whenever you are making payment of your credit transaction and you are getting discount at that particular time, then this discount will be considered as your cash discount. मतलब अगर हम किसी क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कोई पेमेंट कर रहे हैं या कोई पेमेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, और उस टाइम पर हम लोगों ने अगर कोई उसे फर्दर एडिशनल डिस्काउंट दिया है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर कैश डिस्काउंट. एंड क्लास, let me tell you one thing, that we have to pass journal entries for cash discount. Okay, trade discount की journal entries नहीं होती है, लेकिन cash discount की journal entries हम लोगों को करनी होती है. So when it comes to journal entry, there are two types. If you are getting cash discount, यानी कि आपको मिल रहा है, तो आपको इनकम हो रही है, you will generating an income in the name of discount receive. Therefore that discount receive account will be credited in your journal entry. Okay, and if you are taking payment from someone and you are providing him cash discount, then that will be considered as an expense for you, and therefore cash discount provided या और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री. ठीक है, अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ओके, कैलकुलेशन कैसे होता है? तो कैलकुलेशन पार्ट पे सबसे पहले क्लास, यू हैव टू डिडक्ट योर ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड फ्रॉम ऑन दैट फाइनल प्राइस, मतलब आफ्टर जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आ रही है उस प्राइस के ऊपर आप लोगों को अपना कैश डिस्काउंट अप्लाई करना होता है. क्लास, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहाँ पर हम लोग पार्टली पेमेंट करते हैं. तो जितना आप पेमेंट करेंगे, जितना भी परसेंटेज ऑफ पेमेंट आप करेंगे कैश में या पेमेंट आप लेंगे कैश में, सिर्फ उतने ही अमाउंट के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको अपना कैश डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई करना होता है. ओके, एंड देन द जर्नल एंट्रीज विल बी पास. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी आर हैविंग सम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स विद अस. अभी तक हम लोग जो देख रहे थे या तो कैश ट्रांजेक्शन्स या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, बट business transactions have to be done through your bank accounts. Therefore it is very much compulsory to go through this topic as well. So the very first is when cash is deposited into the bank. जब हम लोग बैंक में कैश जमा करा रहे हैं, that will be bank account debit to cash. और जब हम लोग कैश निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. If you are getting any kind of checks from your customer and you have deposited that particular check on the same date, हम लोग उसको हाथों हाथ जाके बैंक में लगा देते हैं, then the entry will be bank account debit to customer account. But
अगर आपने चेक ले लिया है और आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, उसको अभी तक आपने जमा नहीं कराया है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो फिर द एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब तब आप अपनी बैंक नाम के एसेट को रिकॉर्ड करने की जगह पे चेक इन हैंड नाम की एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। और फिर वेन एवर यू आर गोइंग टू डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर चेक इन टू योर बैंक, तब हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करके और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, बैंक नाम के एसेट बढ़ गई डेबिट और चेक इन हैंड नाम के एसेट खत्म हो गई क्रेडिट। ओके, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट सम अमाउंट, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे खाते में पैसे जमा कराएगा तो फिर द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। व्हेन चेक ऑफ प्रीवियस, जब हम लोगों ने चेक लगाया था अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर एंट्री क्या करेंगे, द एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लास डिसऑनर का मतलब होता है कि आपको पेमेंट नहीं हुआ है उस चेक का। ओके, तो अगर आपको पेमेंट नहीं हुआ है तो व्हाट द थिंग्स विल बी, आपकी कस्टमर नाम के एसेट बढ़ जाएगी और बैंक नाम के एसेट जो आपने रिकॉर्ड कर दी वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया आपने, ठीक है। और अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो उसको चेक के साथ में, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ऑलराइट, अगर वो डिसऑनर होता है डिस्काउंट वाला पार्ट, तो फिर क्या होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। दिस विल बी द अपोजिट एंट्री ऑफ द अबव वन। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, अभी तक तो हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे थे, अब आएगा कि जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। ओके, देन द एंट्री विल बी पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो भी जिस पर्सन का भी नाम है, जो भी हमारा क्रेडिटर है, उस दैट पर्टिकुलर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। And if you are paying any kind of expenses, then the entry will be expenses account debit to bank. If you are withdrawing some cash for personal use from your bank account, then the entry will be drawings account debit to bank. If bank has charged certain kind of interest on our account, कोई खर्चे, कोई इंटरेस्ट हम लोगों से उन्होंने चार्ज करा है, तो इंटरेस्ट नाम का हमें एक्सपेंस हो जाता है, then the entry will be interest account debit to bank. और अगर हमारी सेविंग्स पे या हमारे फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक हमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो it will be considered as an income for us. Therefore, the entry will be bank account debit to interest. And many times bank charges us some amount for their banking services. Then the bank charges will be considered as an expense at that time. Therefore, the entries for that will be bank charges account debit to bank account. So let's move further. Now we are having some special transaction entries class. Suppose the payment is being received from debtors. The entry will be कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपने जब गुड्स बेचा था तो आपने एंट्री क्या करी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब वही डेटर आपको पेमेंट कर देगा, कैश नाम के एसेट आपके पास आ जाएगी, देन द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ओके क्लास, लेकिन अगर वो डेटर आपको पेमेंट नहीं करता है, आप उसके पास से आपको फंड नहीं मिल पा रहा है, तो आप इधर एक एंट्री देखिए यहाँ पे, ओके इट हैज़ नॉट बीन मेंशन, मैं आपको नरेट कर देता हूँ। द एंट्री फॉर दैट विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ओके सॉरी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आपको बैड डेब्ट्स नाम का एक लॉस हो जाएगा तो आप बैड डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे, और डेटर्स नाम के एसेट खत्म हो जाएगी तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। देयरफॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ऑलराइट, ओके। फ्यूचर में अगर हमें उस बैड डेब्ट्स, उस डेटर से अगर कोई जो बैड प्रूव हो गए थे, अगर उससे हमें कोई पेमेंट रिसीव होता है, तो हमारे लिए कैश नाम के एसेट बढ़ जाएगी और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नाम की एक इनकम जनरेट हो जाएगी। देयरफॉर द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नाउ इट कम्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई खर्चा है, वो पर्टिकुलर किसी ईयर में आपका ड्यू तो हो गया है, लेकिन आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं करा है, देन द एंट्री विल बी expenses account debit to outstanding expenses account. Suppose it is you haven't paid your rent till yet, और उसका जो टाइम पीरियड था वो ड्यू हो गया है, the entry will be rent account debit to outstanding expenses. Look class, दो केसेस है। अगर आप एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देंगे तो द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और इट इज़ रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी कि पेमेंट करेंगे तो कैश नाम की बैंक नाम के एसेट खत्म हो जाएगी, क्रेडिट कर देंगे। और अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, उसको क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, देन इट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर व्हेन यू आर पेइंग योर एक्सपेंसेस ऑन एडवांस बेसिस।
ठीक है, हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को भी अभी पे कर दिया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रीपेड एक्सपेंस. तो देयर आर टू एंट्रीज फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने पेमेंट कराया तो कैश नाम के एसेट तो खत्म हो ही रही है, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. और फिर उसके बाद में आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एक असेट जनरेट हो जाती है टू यूज इट इन फ्यूचर. देयरफॉर द एंट्री विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. ओके, let's move further. Now it is asset sold by the business. हम लोगों ने एक एंट्री देखी थी जब हम लोग असेट खरीद रहे थे, तो वहाँ पर आ रहा था हमारे पास में असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक. यहाँ पे क्या है, जब हम लोग बेच रहे हैं तो अपोजिट एंट्री हो गई, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. देन अगर बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, हम लोगों ने कोई लोन ले लिया है, जैसे हम लोगों ने अभी कैपिटल की दिखी थी, द एंट्रीज आर कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. अगर हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे देन द एंट्रीज आर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. ओके, नाउ हम लोगों को कई बार डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ता है असेट्स के ऊपर. एज वी आर मूविंग फर्दर, जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करते जा रहे हैं तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है, एंड दैट पर्टिकुलर डेप्रीसिएशन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर अस. Therefore, the entry for this will be depreciation account debit to assets. Plus, why I have mentioned assets over here, because कि depreciation लगने से हमारी जो fixed assets है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो अगर हमारी assets की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे. Therefore, the entry will be depreciation account debit to assets account. देन इट कम्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो हम बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो हम लोगों से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एज्यूम कर एक्सपेक्ट करता है, तो बिजनेस को पेमेंट करना पड़ता है उस इंटरेस्ट का. देयरफॉर द एंट्री फॉर दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हम लोग उसके कैपिटल फंड में ही इस इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे लिए कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस हो जाता है. देयरफॉर द एंट्रीज आर interest on capital account debit to capital account. Next we are having is interest on drawings. जब पैसा इंट्रोड्यूस होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, लेकिन जब पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्राइंग्स, एंड देयरफॉर वी विल कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन दैट ड्राइंग्स. देयरफॉर द एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम हो गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया. ओके और भी कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं विच आर रिलेटेड टू योर गुड्स, तो उसको देखते हैं. व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन गुड्स, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा है हमारे बिजनेस से, देन द एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ओके, व्हेन द गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी, जब हम लोग गुड्स को चैरिटी कर देते हैं, बाहर डोनेट कर देते हैं, देन द एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. ठीक है, हमें चैरिटी नाम का एक्सपेंस हो गया और गुड्स हमारे खत्म हो गए, इसलिए हमने परचेज नाम के एक्सपेंस को राइट ऑफ करा, तो एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, अगर हम लोग फ्री सैम्पल दे रहे हैं, फ्री सैम्पल कब देते हैं, जब हम लोगों को हमारा एडवर्टाइजमेंट करना होता है. देयरफॉर द एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज. व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और लॉस्ट बाय थेफ्ट, then the entries will be lost by theft account debit और lost by fire account debit to purchase. और अगर हमने उस लॉस उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो what we will do is we will claim that particular loss from our insurance company. So for that thing we will pass an entry that is insurance company account debit to loss by theft. ये हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से उस पैसे को ड्यू करवा लिया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए असेट बन गई, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा और हमारा लॉस उससे रिकवर हो गया, इसलिए हम लोगों ने उसको लॉस को क्रेडिट कर दिया. ऑलराइट, व्हेन पेमेंट इज रिसीव बाय इंश्योरेंस कंपनी देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. एंड मेनी टाइम द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे फुल अमाउंट ऑफ योर क्लेम. जितना आप क्लेम करते हो उसका फुल अमाउंट आपको नहीं मिलता है, कुछ ही अमाउंट आपको मिल पाता है. ठीक है, तो जितना भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट आप रिसीव नहीं करेंगे वो आपका एक्चुअल लॉस कंसिडर्ड हो जाएगा और उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे और फिर साथ में टू इंश्योरेंस कंपनी नाम के एसेट को ख़त्म कर देंगे. तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. ऑलराइट क्लास, सो दिस इज ऑल फॉर योर जर्नल एंट्रीज.
or when you will going through the illustrations, you can find many some different terms that are used on specific transactions. So you have to go through it with the help of the illustrations as well. And class, please stay home and stay safe. Thank you so much.